I was a science student till class 12th. Somehow managed to pass my class 11th and 12th. पापा के कहने पे BCom में admission ले लिया Delhi University. Then I enrolled myself into advertising and public relations. Unfortunately, my mother was diagnosed with cancer. It should, help you earn. Hi guys, this is Prachi Shastri, fashion designer and wardrobe stylist. So this series is all about creative people. We are going to talk about their business, their lifestyle, their hardships, their zeal to achieve something, and many more. Welcome to our channel. Thank you. So tell us about yourself and your business. I am Megha, founder, owner and designer at Teesta by Megha. It's an online clothing brand which reflects my personality. Okay, so what does Teesta mean? Teesta is a name affectionately given to me by my parents. So my name, as I said, it reflects my personality and my personal style. So I thought of naming this brand Teesta. Okay, so you were into marketing and all, right? फिर आप डिजाइनिंग में कैसे आ गए? Yeah. See, it's a long story. All my, if you see my career path, it's been like a messed up thing. I was a science student till class 12th. Then 12th, after giving my 12th exams, I realized that science is not meant for me. I know. I think I'd say 15-20 years back, it used to be like कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको साइंस लेना है, राइट? जो साइंस नहीं कर पाते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, वो कॉमर्स ले लेते थे, और जो बिल्कुल ही लगता था ना कि जो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो आर्ट्स वो मेंट फॉर देम. सो मार्क्स अच्छे आए, पापा ने बोला कि साइंस ही लेनी है, मार्क्स आए हैं तो लाइक ओके, पेरेंट्स के कहने पे साइंस ले लिया. आई समहाउ मैनेज टू पास माई क्लास 11th and 12th. बट 12th के बाद लगा कि नहीं, अब ये मैं नहीं कर सकती, दिस इज लाइक नॉट माई फील्ड. तो आई वॉज लाइक कि पापा अभी मुझे साइंस नहीं करना है. तो उन्होंने बोला अच्छा, तो चलो फिर कॉमर्स तो करो, आर्ट्स तो बिल्कुल नहीं करना है. तो पापा के कहने पे BCom में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में. बट देयर वाज सम क्रिएटिव फ्लेयर इन माय माइंड, जिससे मुझे लगा कि चलो ठीक है, पेरेंट्स के कहने पे कुछ कर लिया, बट अपने लिए भी कुछ करना है. देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. आई समहाउ एंजॉयड इट. आई डिड माई PG इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. फिर थोड़े टाइम के लिए मैंने जॉब भी किया इस फील्ड से रिलेटेड. बट life was going on, I was doing things, I was earning. In the meanwhile, I got married also. Then I again worked for some time. But there wasn't, जिसको बोलते हैं ना, वो creative satisfaction नहीं आ रहा था. मैं life में कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, but शायद वो नहीं था जो मैं करना चाहती थी. Then one fine day, I gave up everything. I was married, I was settled, I had my son. Then छोड़ दिया मैंने सब कुछ. I was completely looking after the house and my son. Then I think 10-12 laters, जब लाइफ में लगा थोड़ा सा कि अभी बेटा बड़ा हो गया है, now I have time, stability आ गई है, now I have time for myself. Then I was like, एक वो ज़ील तो था ही शुरू से कि अपने लिए कुछ करना है. And this thing, clothing, designing stuff for myself was always, a bent of mind I had. तो उस टाइम पे लगा कि कुछ करना चाहिए. तो अब नाउ इज द राइट टाइम कि अभी भी वो नहीं करा जो मैं करना चाहती थी. देन तो कब करूंगी. सो दिस इज हाउ द आइडिया केम इन, एंड लीविंग एवरीथिंग अपार्ट, आई गॉट इनटू दिस थिंग. बट आई एम श्योर डिफिकल्टीज तो बहुत आई होंगी, क्योंकि एक प्रोफेशन से प्रोफेशन चेंज करना, दूसरे प्रोफेशन में आना, एब्सोल्युटली quite difficult. Absolutely. See, the thing is, it all started with a passion. I had a passion for clothing. I had a passion for designing. I love designing clothes. I love to wear clothes. I love to dress up. But passion से काम करना और उसको एक business में convert करना is an entirely different thing. तो passion के लिए start किया. I'll tell you a story also how it all started. I want, the thing is, I loved wearing sarees always. आई थिंक हम सभी अपनी मदर्स को देख के हमेशा से रहा है कि साड़ी इज सच अ ग्रेसफुल अटायर एंड एवरीथिंग. आई लव्ड वेयरिंग साड़ीज. तो होता क्या था ना, मैं जब भी साड़ी पहनती थी तो देयर वाज ऑलवेज लाइक कि मैं एक कन्वेंशनल वे में साड़ी नहीं पहना, साड़ी का ब्लाउज आया साथ में और वही नहीं पहना. तो आई यूज टू ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एंड मिक्स एंड मैच थिंग्स. तो समहाउ माई फ्रेंड्स एंड ऑल माई रिलेटिव्स, एवरीबडी लव्ड माई स्टाइलिंग. तो इनिशियली हुआ क्या, सबने मुझे बोलना शुरू करा कि
माई फ्रेंड स्टार्टेड सेंडिंग मी पिक्चर्स ऑफ द साड़ीज कि यार इसके साथ ब्लाउज बताओ कौन सा जाएगा. फिर इनिशियली वो करते करते दे वर लाइक दे स्टार्टेड गिविंग मी देयर साड़ीज कि यार प्लीज इसके साथ मुझे ब्लाउज ला कर दे दो, मेरे लिए इसके साथ डिज़ाइन कर दो. तो आई वाज लाइक ओके, आई वाज एंजॉइंग दिस थिंग. तो वन फाइन डे यू नो आई मतलब दिस आइडिया क्लिक टू मी कि यार everybody is liking this thing, so why not turn it into something professional. So अब being into a service, my husband was a professional, और ऐसा कोई business वो नहीं था, कोई इतना पैसा नहीं था कि मैं one fine day I start a business, but I wanted to. So I borrowed 50,000 rupees from my husband. I asked him कि you just give me 50,000 rupees, risk है but दे दो. He was like ठीक है. I borrowed 50,000 from him. I outsourced some hand woven sarees and I styled it, mix and match with some blouses, and I posted them on Instagram. I started an Instagram page. Instagram was not that popular that time. I was not at all a very a media savvy person, yeah, social media you can say. But I made a page. I think 50,000 mein I made some 10-12 sets that I posted online, and you call it luck or whatever. It just clicked. It clicked. All of them got sold. Wow. And it was such a motivational moment for me. Still since that day till today, मैंने आज तक अपने हस्बैंड से दोबारा पैसे नहीं मांगे. मैंने किसी से बोरो नहीं किए, मैंने कभी बैंक से लोन नहीं लिए. It's that day and till today I am running this business, touchwood, successfully in my terms on my own. Nice. मैंने देखा कि शूट्स भी आप खुद ही करते हो. हाँ, शूट्स भी मैं खुद ही करती हूँ. माई हस्बैंड इज माई ओनली फोटोग्राफर. आई हैव नेवर डन एनी प्रोफेशनल शूट्स. इट्स जस्ट अ टीम ऑफ 2 of us, he and me. He is not full time into this because he has his own job also, but thanks to him with all his support and motivation, so far so good. तो आपका इंस्पिरेशन क्या रहा? जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होता है, हम इससे इंस्पायर हुए हैं, उससे इंस्पायर हुए हैं. तो आपका क्या था इंस्पिरेशन? Inspiration, I won't call it inspiration. There were 2 things. Firstly, because everybody was liking what I was wearing and what I was doing, that was a motivational factor in my life कि भाई सबको अच्छा लग रहा है तो why not turn it into something professional, firstly. And secondly, there were some brands who were doing sarees exclusively, and as I loved wearing sarees, but they were out of my reach. Okay. I could buy 1 or I could buy 2, but it wasn't possible for me to buy every time from there, from some so-called big designers. So initially I started outsourcing things, but थोड़े टाइम उसको करने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, I don't want to do this. मुझे किसी से ला के उठा के और रीसेलिंग नहीं करना है. The idea was I wanted to do something of my own. Okay. But again, as you called, मतलब you asked for difficulties ये थी, I had no designing background, I had no fashion textile background, I had no previous knowledge of how to do a business. I've never done that. I don't come from a business family, so these were some of the challenges that I was facing, and some of them I still face today, though I have come a long way and I have learned a lot. So now the question was, how do I get things made for myself? Luckily, you call it luck. आप जब कोई रास्ता पकड़ते हो ना तो बोलते हैं ना कि चीज़ें अपने आप आती जाती हैं और मिलती जाती हैं, आपके अंदर बस एक विलिंगनेस होनी चाहिए. तो one fine day I got hold of a weaver from Chanderi, and that's in Madhya Pradesh, and that's where most of my things are made these days. Okay. I luckily got hold of him. I asked him कि मुझे अपने लिए कुछ साड़ीज़ बनवानी है जैसी मैं चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए वो साड़ीज़ बना सकते हैं मेरे कलर्स और मेरे डिज़ाइंस में? तो ही वाज लाइक कि बन जाती हैं बट एक साड़ी नहीं बनती है. इट्स लाइक मेड इन द बैच ऑफ एटलीस्ट 12. तो मैं थोड़ा सा मायूस होके आ गई. भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 12 साड़ियाँ इकट्ठी बनवा के या 24 साड़ीज़ इकट्ठी बनवा के मैं क्या करूँगी? और इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट इफ इट डजंट क्लिक? व्हाट इफ आई फेल? आई केम बैक होम देन, बट वो इच्छा भी चल रही थी कि नहीं कुछ तो करना है. देन उसका वीवर का एड्रेस और नंबर मेरे पास था. आई आस्क्ड माई हस्बैंड कि छुट्टी है, चलो लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. तो वी ड्रोव टू चंदेरी. इट्स 10 hours फ्रॉम दिल्ली. I went to Chanderi. I went to his house. I discussed with him. तो मैंने उसको बोला तो उसने बोला कि 12 तो बनाना पड़ेगा आपके लिए. एक डिज़ाइन एक लूम पे 12 साड़ी से कम नहीं चलता है.
थोड़ा मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि चलो यार लेट्स टेक इट अ कॉल, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 12 साड़ियाँ आएंगी, मैं गिफ्ट कर दूंगी सबको, कुछ और नहीं होगा तो ठीक है। मैंने अपना पहला डिज़ाइन बनाया वहीं चंदेरी में बैठ के, आई टुक अ कॉपी एंड पेन, आई मेड द डिज़ाइन व्हाट आई वांटेड, आई चोज द कलर्स फ्रॉम अ शेड कार्ड, मैंने उसको दिया तो ही वाज लाइक ठीक है, वो मेरे से लेकर चला गया। आई केम बैक होम, साड़ीज़ बन गई, साड़ीज़ बन के आई, आई पोस्टेड इट, जो पहली साड़ी बन के आई आई पोस्टेड इट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड लकीली it blew up the, you know, in my Instagram, it got massive support from everybody. It was a hit. Okay. It was a hit. Then again it was a motivating factor for me, and till that day and today there's no looking back. I started with one weaver. I'm engaged with 7-8 families now in Chanderi. Okay. And now I'm expanding my work in Gujarat also. ये जो आपकी फर्स्ट साड़ी थी, फर्स्ट प्रोडक्ट, योर फर्स्ट बेबी, ये आपका कितने का सेल आउट हुआ? I sold it for 4,500. ओह नाइस. Yeah. आपकी बात से मुझे याद आई कि many a times I get this question on my page कि though I don't feel कि मेरे products बहुत expensive हैं, but फिर भी बहुत बार question आता है कि why is it so expensive? तो आई वुड लाइक टू क्लियर कि इट्स अ हैंडमेड प्रोडक्ट, हाथ से बनता है, लूम पे बनता है, एक ह्यूमन उसको बैठ के बनाता है. इट टेक्स टाइम. एक साड़ी बनने में अगर सिंपल है तो 3 से 4, और अगर इंट्रिकेट है तो एट टाइम्स 10 से 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं. तो हैंडमेड होने की वजह से थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा रहती है. ओके. हैंडमेड तो होता ही है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है. हाँ हाँ. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? जो आप साड़ी बनाते हो तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है? फैब्रिक्स कौन से यूज़ करते हो? क्या क्या होता है? See, I basically work with Chanderi weavers and Chanderi weave. Chanderi weave जो है, it's a mix of silk and cotton. अगर आपको पता हो, जब भी कोई फैब्रिक बनाया जाता है तो उसमें there's a concept called warp and weft, ताना और बाना जिसे बोलते हैं. तो एक धागा सिल्क का होता है और एक धागा कॉटन का होता है, दोनों को मिक्स करके जब बनाया जाता है उसको चंदेरी फैब्रिक बोलते हैं. तो बेसिकली मैं इसी फैब्रिक पे वर्क करती हूँ. एट टाइम्स सिल्क बाय सिल्क भी होता है जिसमें ताना बाना दोनों सिल्क का लगा होता है. तो चंदेरी वीव इज ऑल अबाउट silk by cotton and silk. So this is the fabric I work on. But recently I have also started working with weaves in Gujarat, Kutch. They work on kala cotton. They call it kala cotton. वो एक organic form of cotton होता है. तो वहाँ पे खाली cotton पे work किया जाता है. Okay, nice. That's interesting. Yeah. तो कभी आप अपनी वर्कशॉप पे भी हमें ज़रूर बुलाइएगा, जिससे हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकें श्योर श्योर क्या क्या होता है. आई डोंट हैव अ वर्कशॉप हियर, क्योंकि Okay. जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो चंदेरी में बनते हैं या फिर गुजरात में बनते हैं. बट हाँ, आई डू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे मेरी अपनी साड़ीज बन रही होती हैं. आई मेक श्योर, आई टेल माई व्यूअर्स कि जब भी मेरी साड़ी बन रही है तो आप उसका प्रोसेस दिखाएं, कैसे हैंडलूम पे साड़ी बनती है. एंड आई हैव पोस्टेड अ लॉट ऑफ वीडियोज रिगार्डिंग द सेम ऑन माई पेज. So you can always go and check. It's a very interesting process and it's a very deep and intricate process. मैं गई हूँ, मैं कितनी बार चंदेरी गई हूँ. I always try to learn, but you know, एक चीज़ को सामने देख के उसको बार्गेन करके उसको खरीदना और उसके पीछे कितना लेबर इन्वॉल्व होता है, you can't even imagine. You know, it's a very laborious process. आप और मैं शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे. So इसीलिए शायद उसको एक आर्ट फॉर्म भी बोला जाता है. So basically fabric weaving is a form of art, no doubt. ट्रू. तो जैसे आप सारे अपनी साड़ीज़ खुद ही डिज़ाइन करते हो, तो उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है आपको? कहाँ से आप सोचते हो कि अच्छा मुझे इस साड़ी में ये देना है, ये पैटर्न होना चाहिए, ये कलर्स होने चाहिए? इंस्पिरेशन तो आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स. इंस्पिरेशन तो नहीं है, इट्स लाइक मेरे दिमाग में आ जाता है, यू नो, समहाउ कि मुझे शायद ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, इस साड़ी के साथ इस कलर का ब्लाउज होना चाहिए. एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ तो एक्सपेरिमेंट होते हैं. देखो, आई विल नॉट टेक द क्रेडिट होल सोल माई सेल्फ. मेरा इसमें काम है. आई डू डिज़ाइन थिंग्स. मैं अपने व्यूवर्स को बताती हूँ मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, जो मुझे खुद को अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि मैं पहनना चाहती हूँ. एज आई टोल्ड यू कि दिस ब्रांड हैज़ माई पर्सनल, यू नो, द रिफ्लेक्शन ऑफ माई पर्सनल स्टाइल. तो फर्स्टली जो मुझे लगता है कि मैं पहनना चाहती हूँ, मैं उसको डिज़ाइन करती हूँ और काम करती हूँ. एट टाइम्स वीवर्स जो होते हैं उनके साथ डिस्कशन में भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं. दे सजेस्ट कि ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, या ये चीज़ बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है. तो इट्स लाइक, इट्स, यू कैन कॉल इट अ टीम, यू नो, टीम वर्क, टीम एफर्ट होता है पूरा. इट्स नॉट लाइक कि मैं ही अकेले हूँ. वो हर बिजनेस की बात वो है. हर बिजनेस की बात है. तो
सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब जैसे आपने चंदेरी में काम किया है, अभी आप गुजरात कच्छ के चीज़ों में काम करने वाले हैं, उसके बाद क्या सोचा आपने? कुछ प्लान्ड है? अभी तो आई थिंक 2 weeks आर इनफ फॉर मी, यू नो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं Burden लेना चाहती बर्डन है नहीं अभी। लेना चाहती. Next is, as I told you, I don't have a team right now. It's just me and my husband working for now. Next would be to build up a team, and I also wish to have a experience center or a small studio where people can come and experience things. I understand being a buyer myself कि online चीज़ें खरीदना it's not that easy. आप जब तक कपड़े को छू के और फील करके और अपने ऊपर लगाकर नहीं देखते हो ऑनलाइन खरीदने में और उसमें it's hell lot of a difference. So I soon plan to have a small studio or experience center when people can come in and just experience things. दैट्स ऑसम। Yeah. अच्छा, आई नो कि अभी हम सबको पता है कि आप इस इंडस्ट्री से नहीं थे, फैशन इंडस्ट्री से नहीं थे। तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलोगे? आप अपनी 18-year-old मेघा को क्या बोलोगे कि नहीं बेटा तू ये नहीं ये कर? See, I was 18 years, some 15-20 years back. So things have literally quite changed from then to now. शायद मैं जो आज अपने 18 years सेल्फ को बोलूँगी भी शायद वो उस टाइम पे करना पॉसिबल भी नहीं होता. Like I always loved designing clothes and my father used to feel कि पढ़ो, फैशन मत करो, कपड़ों में मत सोचो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Maybe if things would have been favorable तो शायद मैं इस चीज़ को उसी टाइम से अगर परस्यू करती और एज अ करियर पर्सपेक्टिव देखती तो शायद मतलब आज मैं कुछ और ज़्यादा कर चुकी होती. बट नो रिग्रेट्स, देर आए दुरुस्त आए, जब करा तब अच्छा. तो आई थिंक शायद मैं यही बोलती कि आई शुड हैव फॉलोड माई हार्ट. With due respect to my parents, no offense to any parents, they always wish for the good of their good for you. But at times there are things parents also don't understand. So I would have made them understood and should have followed my heart from then only. So what was your turning point? uh, as I told you कि we always see our mothers, हम अपनी मदर्स को देख के इंस्पायर होते हैं, विच साउंड्स वेरी क्लीशे बट एक्चुअली दिस इज ट्रू. माई मदर वॉज माई फर्स्ट इंस्पिरेशन एज फार एज साड़ी वॉज कंसर्न. शायद मेरा जो पर्सनल स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उन्हीं से आया है. तो व्हेन आई डिसाइडेड इन लाइफ कि अब मुझे अपना कुछ करना है तो माई मदर वॉज द फर्स्ट वन हु मोटिवेटेड मी कि हाँ तुम करो, आई लुक आफ्टर योर हाउस एंड आई लुक आफ्टर योर सन. So I was like very happy, and as I told you, I borrowed 50,000 from my husband and I started working on it. So as soon as I started working on it, unfortunately, my mother was diagnosed with cancer. So it somehow broke me. कि अभी तो मैंने मम्मी से डिस्कशन करा था. शी वॉज लाइक तुम काम करो, आई लुक आफ्टर योर हाउस. एंड यू नो हाउ कैंसर इज. इमीडिएटली शी वॉज पुट इनटू मेडिकेशन और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया एवरीथिंग. सो आई हैड 2 choices इन लाइफ. आई वॉज ब्रोक, आई वॉन्टेड टू गिव अप एवरीथिंग. मुझे कुछ नहीं करना था. आई वॉज कम्प्लीटली शेकन. और दूसरा जो मुझे लगा कि मैं शायद मेरे पास बहुत कम टाइम है. डॉक्टर्स ने टाइम दे दिया था कि शी इज़ देयर फॉर सम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली. तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला तो मुझे ये लगा कि मेरे पास शायद थोड़ा सा ही टाइम है अपने आप को प्रूफ करने का, या मैं सक्सेसफुल हूँ ये मेरी मम्मी को दिखाने के लिए. तो आई टुक दी अदर वन पॉजिटिव लेके एंड आई स्टार्टेड वर्किंग मोर हार्डर कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मुझे जल्दी से कुछ करना है ताकि मैं जाने से पहले अपनी मम्मी को ये दिखा सकूं कि मैंने कुछ किया लाइफ में. अच्छा, तो बहुत मेरे व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए. मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, दूसरी इंडस्ट्री से हैं. तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए जो इस प्रोफेशन में नहीं है? एक तो उनके लिए एडवाइस, दूसरा जो छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं वो परस्यू करना चाहते हैं फैशन, तो उसके बारे में. सी द थिंग इज, फर्स्टली फॉलो योर हार्ट. Do what your heart says. ठीक है, that's the most important thing. Secondly, do what your heart says, but always मतलब ये भी साथ में सोचो कि it should help you earn, because I feel financial independence is the utmost. आप अपने दिल का करो लेकिन don't be dependent on others for your needs. तो कुछ ऐसा करो जिससे you can earn also.
And as far as designing is concerned, if you have a zeal and a passion for it, then only go for it. सारी दुनिया कर रही है and people are successful in business, clothing business and designing. Don't do it for that. अगर आप seriously passionate हो इस चीज़ को लेके, if you have a flair for this thing, then only go ahead for this. और अगर आपको लगता है ऐसा है, then there's no harm. आप you go for a designing degree. A degree always helps. जो एक किसी भी प्रोफेशन की साइंटिफिक चीज़ें होती हैं या डिटेल चीज़ें होती हैं, you do learn a lot from that. So why not? You can always pursue a degree in designing. बाकी तो it's your passion and it's your flair for things that takes you ahead.